अमर रहे, शहीद ज्ञान सो अमर रहे, शहीद ज्ञान सिंह अमर रहे, ज्ञान सिंह तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोके, ज्ञान सिंह तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोके, शहीद ज्ञान सिंह अमर रहे, शहीद ज्ञान सिंह अमर रहे, शहीद ज्ञान सिंह अमर रहे, किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जागदियां कमीरां दा काफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू क्या तेरी सोच पे तेरा देंगे ठोके, किसान मजदूर मुलाजिम दुकानदार विद्यार्थी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वादे पगड़ियां सरकारां मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एमएसपी दी गारंटी वाला कानून लागू न करने वाली सेंटर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों मजदूरों ने समझे कर्जे के लकीर न करेंगे, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम सरदार ज्ञान सिंह तेरी सोच दे सरदार ज्ञान सिंह शहीद तेरी सोच दे किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार बोले सोनिहार इधर भरा के ना पिछे बच खिंच ली ज्ञान सिंह भाजी इधर जी भाजी बयान करे जोड़े ला तीसरे जी इतने आओ पैंती होਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੋ ਇੱਧਰਲੇ ਬਣਾ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਠਾ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਓ ਮੜ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਇਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਧਰ ਲਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਧਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਉੱਪਰ ਪੰਪ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਬੁਝਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਜਾਗਦੀ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਵਾਰ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਤ ਜੀ खड़ा है ना बाहर छोड़ दिए बाहर छोड़ दिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु का साथ समझियो ईश्वर को बड़ा पाठ हो रहा। मेरा नाम जगदीश सिंह है जी, पिंड मेरा चाचू है जी। शहादत जी बहुत माड़ी हुई है। चलो शरीर उम्र बंदा जाना बड़ा औखा ही है दुनिया तो। ਅਸੀਂ ਗਏ ਘਰੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਗਾੜੀ ਗਏ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਟਰੰਕ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂਏ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ? ਧੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਈ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ 2 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, 16 ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ, ਹਾਂਜੀ 2020 ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੇ ਰੋਕੂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 2 ਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਭਤੀਜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਇਹ ਘਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੰਗਰ ਵੱਸਾ ਸਾਂਭਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਪਛਾਣ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਕੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਇਲਟ ਗੰਨਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਬੜ ਬੁਲਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ, ਰਬੜ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਈ ਆ ਬੁਲਟ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ, ਗੋਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਗੋਲਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ही जावांगे। संगठन मध्य प्रदेश से हूँ। अब आप कैसे देखते हैं अभी जहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे किसान की बहुत अजीब लगता है जब किसी कार्य को करने के लिए आप निकलते हैं घर से साथी के साथ, और आपके साथी बीच में ही साथ छोड़ के चले जाते हैं। बहुत बुरा लगता है। सोच के तो ये निकले थे कि सभी जा रहे हैं, जीत के आएंगे और फिर अपनी खुशियाँ भी साथ में मनाएंगे, लेकिन ये खुशी हम जीतने के बाद भी कभी नहीं मना सकते हैं, क्योंकि हमारे कई साथी नहीं रह पाएंगे, जिसमें आज उधम सिंह के साथ हुआ है। अभी तक हमारे सॉरी ज्ञान सिंह के साथ हुआ है, और अभी जो सरकार की रवैया है उस हिसाब से तो लगता है कि उसको एक तानाशाह का लत लग गया है। दुनिया के तानाशाह में सबसे पहली प्राथमिकता ये रहता है कि उसके नाम से कितनी मौतें हो चुकी हैं। तो उस तरीके से 2 साथी का भी बताना चाह रहा हूँ कि एक का रीढ़ का हड्डी टूटा है और एक का एक आँख पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, दूसरा थोड़ा बहुत बच रहा है। तो हमें नहीं लगता कि ये सरकार इतनी जल्दी मानने वाली, उसको कुर्बानी लेना पसंद है। 145 इंजर्ड केवल शंभू बॉर्डर पे हुए हैं। इनका भी केवल बताया जाता है कि हार्ट अटैक से नहीं है, पहले इनके पूरे फेफड़े में धुआं भरा था,
और धुआं भरने के बाद वो भागे थे वहाँ से, उसके बाद वो कभी धुआं नहीं निकल पाया। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ये क्या चाहती है, अगर कुर्बानी चाहती तो हम ऐसे भी दे देंगे, लेकिन हमें इस तरह से तरपा के लेने की क्या ज़रूरत है। बस यही है कि इनकी आत्मा को शांति दे मिले। अब आज भी जैसे कल भी मीटिंग का समय है, आप क्या लग रहा है कि ये आंदोलन ये पंजाब के सीमित ही रह चुका है? हम लोग सरकार को बोल रहे हैं कि कुछ तो बोलिए, किसी मुद्दे पे 3-4 मुद्दे, स्वामीनाथन, MSP की गारंटी, किसान की कर्ज माफ़ी या 10,000 रुपया की, तो कुछ तो बोले। वो हर बात पे यही कहते हैं कि नहीं कमेटी बना दीजिए, कमेटी बना दीजिए। कमेटी तो स्वामीनाथन का भी बना था, 2005 में ही रिपोर्ट आ गई थी 2200 पेजों में, अभी तक उसका क्यों नहीं लागू किया गया। कमेटी बनाना ही था तो वो तो 2022 में ही बन गए थे, कमेटी से क्या निकला, कुछ नहीं निकला। वो सोच रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगा, एक कमेटी का काम पूरा हो जाएगा और पूरे देश में हम घूम घूम के बोलेंगे कि देखिए किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट हम दे दिए, किसानों को MSP की गारंटी दे दिए, कि कमेटी बना दी है और उसका वोट का फ़ायदा भी लेंगे और हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो उनका कमेटी से कुछ, हम लोग एक किसी मुद्दे पे आप राष्ट्रपति से 2 लाइन का तो है कि आप अध्यादेश लेके आ जाइए, उसमें लिखवा दीजिए कि MSP की गारंटी दिया गया 6 महीने के लिए तो वैलिड रहता है, उसके बाद आप कानून बना दीजिएगा। अगर इतनी दिक्कत है आपको तो चाहे तो 6 महीने और भी बढ़ा सकते हैं उसे, लेकिन वो अध्यादेश लाने नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से भूमि अधिग्रहण पे वो अध्यादेश लाए थे नियम बदलने के लिए, उसी तरीके से ऐसा क्यों नहीं होता कि MSP की गारंटी पे अध्यादेश लेके आ जाए, लोन माफ़ी पे अध्यादेश लेके आ जाए। तो लेकिन वो करना नहीं, लोन माफ़ी पे अध्यादेश की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं, ये पंजाब का ही एक आंदोलन बन के सीमित है? नहीं, बिहार से मेरा जन्म बिहार में हुआ, संगठन का काम मध्य प्रदेश में करता हूं। बिहार से 100 से ऊपर किसान जंतर मंतर पे गिरफ्तार हुए और उनको एक पुलिस के अफसर बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोला पंधेर जी के पास जा रहे हैं। तो बोले पंधेर जी तो देशद्रोही है, इस तरह से बोला एक अफसर ने दिल्ली का। और तो बोले कि आप हमें नहीं पगलाइए, हम लोग किसान संगठन से पहले से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को ज़बरदस्ती टिकट कटवा के ट्रेन में बैठा के बिहार भेज दिया गया है। कर्नाटक से आ रहे थे हमारे किसान संगठन के लोग, उसको भोपाल में गिरफ्तार किया गया। एक महिला को बाल पकड़ के खींचा गया, उनका बाल खींचने से उनका सर फूट गया है। उन सभी को उज्जैन में ले जाकर कैद किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, केवल सभी इंतजार कर रहे हैं कि शंभू बॉर्डर से जैसे ही ये जत्था निकलेगा फिर पिछली बार से कई गुना ज़्यादा रहेगा और अलग अलग स्टेट से आएंगे। क्योंकि हम लोग इसके लिए 13 फरवरी को पटना में बैठक किए थे, 14 फरवरी को हम लोग ग्वालियर में बैठक किए थे, फिर केरल में बैठक किए, फिर तमिलनाडु। सभी किसान संगठनों के पास जाके हम लोगों ने अपनी बात रखें, सबने सहमति दिए हैं कि इस बार सभी लोग साथ में हैं, कोई अलग नहीं है।